humanity, philosopher. So, in character certificate, we certify whether the person is right or wrong. If the person is right and he manages the money in a proper way, in a dynamic way, in a constructive way, and without cheating, that person is recommended for the government employment. आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट लेस देन क्लास 1 मैजिस्ट्रेट करके लिखते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? अनलाइक समाज में ऐसे प्रचलन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। गोपनीयता, सब गोपनीय का धंधा, और इनका अंडरस्टैंडिंग ये है, इट इज़ नथिंग टू डू विद द sex life or sex sciences. It is the money management science. And the history and democracy, it is true money management science. But not the democracy means vote counting. ये क्या बात हो गई? No cheating accounts management, money management. History of democracy is wrong. जिसका मन में राम बसा हो and the person is perfect in managing the money in a proper way without cheating, then his character is okay. जीव प्राणी कोटि में पशु, पक्षी, मनुष्य की शक्ल में तरह तरह के जानवर, तरह तरह के राक्षस, तरह तरह के मानव, तीनों दिखाई देते हैं। सारी पशु कर्म से पशु कहा जाता है। मैन इज सोशल एनिमल. Why he is called animal? Why a person is man is called animal? Because social love life of selfish desires. The person is basically is a social love life, cheating social love life of selfish desires. ऐसे व्यक्ति को एनिमल कहा जाता है. एनिमल डेफिनेशन यही है, माने कर्म से आदमी पशु होता है और दूसरों को दुखी करे, दूसरों को दर्द दे, नाश करे, प्रकृति के नाश करे, उसे राक्षस कहते हैं, डेविल्स. उसके उल्टे जस्ट अपोजिट पीर पराया जाने रे वैष्णव जन. तो ये कहावत है. दूसरों का पीड़ा समझते हैं तो वो वैष्णव जन माने 5 पीपल, 5 पर्सन फिलोसोफर्स कहा जाता है. ये पूरी सत्य नहीं है, अधूरी है. किसी भी प्राणी का दर्द समझना और उसको दर्द दूर करना और उसको ज़िंदगी में मुस्कुराहट वापस लाना, ये कर्म करने वाले को मनुष्य जाति कहते हैं, ह्यूमन कहते हैं.
प्रकृति को संरक्षण देते हैं, पालन पोषण संरक्षण करे तो विष्णु है, वैष्णव है। सच्ची मान्यता में परों का पीड़ा समझना, उनका दुख दर्द हल कर देना, हमेशा जीवन में मुस्कुराहट पुनर्स्थापना करना, यही अति उत्तम धर्म है, कर्म है, यही कर्म है, यही सत्कर्म है, यही पूजा है, वही मनुष्य जाति है। ह्यूमैनिटी कहते हैं, सन ऑफ गॉड इज 5 died here. Father is the step 1, and step 2 is father grows to maturity by God's voice, and becomes Godfather. हिंदी में इन्हें कहते हैं गरुकमंत। फादर को कहते हैं हनुमंत। हनुमंत के मन ज्ञान गुण सागर, मारुत तुल्य वेगम, संकट मोचक, क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर। O 5 sir is officer. O omnipotence. 5 signs, person of hue signs. Sir, SIR. Sir triangle signs, life triangle signs. The father, when he constantly getting exposed to or listening to or catching the God's voice, he himself becomes perfection in work, and he becomes Godfather. And Godfather, without any complaints, without anything, he senses the pain of the sufferers, and re-establishes the real human world, peaceful life world, peaceful human life, peaceful science, peace science is economics. Economics is peace science. And it is Godfather. It is Garukmant. Is class 1 गेस्टेड ऑफिसर। ये महावेगम, हनुमान जी मारुत तुल्य वेगम, गरुकमंत महावेगम। और पूरी हिसाब कर दें, तभी मानवता का रक्षा होती है। ऐसा नहीं है तो परिणाम मनुष्य जाति का अंत होता है। द डेविल्स kill, assassinate human when there is no law. I mean, when there is no law of logic, truth, the devils assassinate human, father and grandfather, godfather. Means, in another way, when the law of magic, my cheating life maths,
is myths, magic, mythology is applied and it is running at present. It is law of magic is running, not law of logic. And it is mythology. And we need to establish human world is a law of logic. It is a preventive life science of no torture, no punishment. Social life science as well as body life science. Body life science of no torture, punishment is no medicines and no surgeries. And if we come to the curative life science, the mythology, it is a curative life science. It is a science of punishment, torture and punishment, of surgeries, medicines, and putting them and torturing them in the jail, punishing them. पीर पराया जाने रे वैष्णव जन तो पहचाने राहत दे। और जो आदमी की शक्ल में जो घूम रहा है वो बोल सकता है, ढूंढ सकता है इलाज के लिए या भीख मांग सकता है, लेकिन ये पशु, एक जानवर व्यक्त भी नहीं कर पाता अपनी बात। लेकिन उनका दर्द जानना, उनका राहत पहुंचाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है, यहाँ एक मनुष्य है, असली में मानवता इसमें पनपी है, ये भगवान की देन है। इनका नज़र इतनी तेज़ है, किसी भी स्ट्रे एनिमल पे पड़ती है और उनका दर्द तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत दौड़ते हैं, जो भी जैसे भी हालात में है तो उसका राहत पहुंचाते हैं। और मैं साक्षात्कार किया हूँ, एक केस मेरे सामने ही हुआ है। एक गधा चोट खा के खड़ा था, उनको प्राथमिकता तौर पर उन्हें पहले बाल्टी ले आया, हैंडपम्प से पानी ढो के ले आया, पानी पिला रहा था तो गधा नहीं पी रहा था, लेकिन उसका थोड़ा सा हाथ से पानी थोड़ा थोड़ा उसके जीभ के ऊपर, मुंह पे ऊपर डाला तो फिर थोड़ा सा चाटने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद एकदम बाल्टी पानी पी गया वो जानवर। मैं हैरानी में पड़ गया। पीने के बाद वो जानवर करता क्या है, इसको मसीहा समझ गया इस आदमी का। क्यों ना, गधा है लेकिन वो भी परमात्मा को, प्रभु को जानने की कोशिश करता है। जो उसका रक्षा किया, जान वापस ला रहा है, तो उनको पहचानने लगा। हम कितने लोगों को, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, कितने लोगों को हमने इलाज किया है, कभी सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं, और यहाँ ज़्यादातर लोग मिले हैं, तो गाय का दूध पिया, गाय का तन भी काट लिया, धन गाय को काट के खा भी लिया। इसलिए हमको ऐसा महसूस होता है, यहाँ लोगों ऐसे ही लोग होते हैं तो इलाज करने में हमको मन हटता है, क्योंकि धोखेबाज लोग हैं। लेकिन ये जानवर बोलने के लिए मुंह नहीं है, लेकिन उनको एक बार मदद किया तो वो कैसे बर्ताव कर रहा। ये राक्षस जातियों से लाखों गुना बेहतर है ये पशु जाति। ये वफादार है और पहचानता है परमात्मा को, मनुष्य जाति को जानता है। और यहाँ जितने राक्षस जन है, रूप तो कर्म से राक्षस होता है, कुकर्मी, कुबुद्धि, कुतर्क, अपनी हर बात के मनवाने की जिद,
कभी किसी को पूरी मन से, सच्चे मन से, बिना कपट काम ही नहीं करता। यही राक्षस जाति की पहचान, कपटी, धोखेबाज। तो ये वही आदमी करेगा जिसको सत्कर्म मालूम है। सत्कर्म ही पूजा है, और कोई पूजा नहीं होती। घंटी बजाना, मूर्ति के सामने ये करना, वो सब करना, ये सब कुछ नहीं। जो प्राणी दुखी है, द हेल्पिंग द हेल्पलेस, एंड इट इज द वर्ड प्रॉमिस, fulfilling the promise is the real humanness, and it is the human world. Helping the helpless, not helping the others, helping the helpless and fulfilling the promise. The word promise is the real human. सत्कर्म ये वही लोग करते हैं जो साधु संत, साधु मतलब मन को साधे, अपने मन की जितनी इच्छाएं सब मार के दूसरों का दर्द पीड़ा दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, वही साधु होते हैं। मन सधा हुआ, सेल्फिश डिजायर्स नहीं है, अनसेल्फिश डिजायर्स, नो चीटिंग लाइफ, नो चीटिंग लव लाइफ ऑफ अनसेल्फिश डिजायर्स इज द रियल ह्यूमन पर्सनैलिटी। साधु संत कहा जाता है, बाकी तो सभी कुकर्मी है, कुबुद्धि है, कुमति है, राक्षस समाज। मैं अब की बार साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फाइव साइंस। साइंटिफिक में साइंस एंड साइंटिफिक, the two words are entirely different. Scientific is 5 science. Scientific analysis, scientific is mathematics. By mathematics, I prove, I produce the bar of 4 life bodies, cubic life bodies. Diagonal science delivers induction science, law of logic, truth, theology, religion of God's voice, philosophy. The religion itself is the law, and there is no other law. And it is delivered by truth. HRI triangle sense, RHI triangle sense, one and the same. Diagonal science. Someday I will explain. I can demonstrate. If I am permitted to build the pyramid, a little much more details I can submit and send by email address. Myself, Dr. P.L. Rao, ex-ophthalmologist, Raebareli. But since last 22 years,
I am a searcher, researcher. Zero, zeros, cross zeros, cross life sciences. Thank you, sir. साहब बंद कर दें गुरुजी, ये बंद कर दें। हाँ, सामने आ जाओ, ज्यादा अच्छा। कुछ मास भागने वाले हैं। हाँ भागने वाले नहीं है, बहुत तेज। आओ वहाँ चलेगा, वहाँ चल रहे। रुक जाइए, आप उसका कान पकड़िए, हम दवा डालते हैं। बहुत बुरी तरह डैमेज। अभी ऑन तो नहीं कर दिया? नानन किया है। उनको गिराना नहीं। खड़े खड़े अरे कैदी वाला साहब इस टाइम न मारो, नहीं तो ऐसे घबराओ घबराती। कैदी वाला इस टाइम न मारो। तुम इधर आ जाओ, विजिट विजिट इधर आओ, यहाँ से बनाओ मानस, यहाँ से विजिट जाओ। एक सौ ये रिंकू जी, बाबा जी 100 जी भोजन मिलाओ सब। 166 नंबर का गधा है ये। 165 गधों का अब तक इलाज कर चुका हूँ, जिसमें 3 गधे मर गए थे, दूर से उनको अपने अंदर दफना दिए हैं। 3 गधे अंदर दफन है, बाकी सब सही निजी किनारे ले जाते हैं। जी जी 166 नंबर का ये है। 165 का अभी तक हो चुका है। हाँ। 65 में 3 खत्म हो गए, 62। 62 नहीं, 3 खत्म हुए थे, लेकिन उनका इलाज तो हमको करना पड़ा। तो हुआ। तो ये अभी रामपाल सिंह जी गेहूँ भुनवा के लाए, जी अपने इलाके का राजा है। जी तो हमने यही कहा कि गधे की सेवा का ये चमत्कार है कि सीतापुर से दरोगा जी आके इसके ड्रेसिंग करवाते हैं। सीनियर सर्जन जी। इसी बात को देख करके ये पूरी दुनिया से एक सवाल करेंगे, जी और रवि शंकर जी को यही चारों खाने चित्त किया है। जी। बहुत बड़ी बात है, वो अखबार में धीरे धीरे आवेगा। नहीं, वो तो आप उनसे मिले थे, इसके बाद सारी चीजें हुई। हाँ। हम लोग मिले ही थे उस दिन तो। अभी देखिए, इसका ये अंदर से ये टूटा हुआ है, या जी। इसको लकवा ऐसा मारे है, इसको तकलीफ है। स्टिफनेस हो गया है, हमको लगता है। कुछ नहीं हो गया है महाराज, कीड़े मर जाएंगे उसके बाद फिर मेरा इलाज चलेगा। नहीं, कीड़े तो मर चुके हैं। नहीं तो फिर मेरा हाँ, अब आपका भी थोड़ा इलाज जरूरी है। ये मैदा है, आधा इसमें पाउडर है। जी गधे के ऊपर अगर घाव में पानी डाल दीजिए तो घाव इसका बरसाती बन जाएगा, कभी सूखेगा नहीं। इसलिए कभी घोड़े और गधे में वो पानी नहीं डालना चाहिए। यही सब अस्पताल से लाए हैं बनवा करके, जी यही इलाज चल रहा है। और हो गया। तो चलिए, आप लोग भैया इधर आइए, कम से कम आप लोग भी यादगार में बन जाएंगे। अब सबका रिंकू जी आप परिचय भी बताइए जी। कि इसमें नाम भी आवे, आवाज़ तो आवे। आप बताओ तो मजा आई। बताइए सबका नाम। मतलब किससे दे दिया तुमने? एक ही लिए। एक दो और ले लो। एक दो और ले लो। अगले गधे से। हाँ हाँ, एक ही दे दो, सबका आ जाएगा। यहाँ से इन लोगों को फिर दे दो। अब आप बताते जाइए। सर, श्री राम लखन सिंह भदौरिया, डॉक्टर साहब के पिताजी, जी। पुष्पेंद्र सिंह, नवीन सिंह, और सर से ये ड्राइवर साहब अमरेश मौर्य। अब आप डॉक्टर बाबू और ये डॉक्टर राव हैं सामने, सीनियर आई सर्जन। बस खत्म। हाँ सर, हो गया बस। अब बाकी अभी इनको आपकी दोबारा आइएगा तो इनके जो पैर और में तकलीफ है, हाँ वो सब ठीक। लेकिन वो वाला इलाज न कीजिएगा, ये जो गाय में हुआ था। कहीं 2.5 घंटे में, भाई होनी, जी। 2.5 घंटे में इसको आराम नहीं, इसके सारे कष्ट मिट जाएंगे।
और वही हुआ था वो और आपने 2.5 जैसे बताई घंटे थी वो में बात। उस जी, गाय को सारे कष्ट से मुक्ति मिट मिल गए। गई जी ये होता है भाई। जी। भाई इन्होंने इलाज किया और सत्य बोला। जी जो इनकी शक्ति है उसने सच्ची बात कहवाया कि 2.5 घंटे के बाद इसकी सारी कष्ट जो है दूर हो जाएगा। सही। अब चाहे जिस रूप में हुआ हाँ, सही हुआ बात तो, है। और मात्र 2.5 घंटे में, वो आपने बताया था वो सारी हाँ, चीजें 2.5 हुई उस घंटे में समय। घड़ी जी। देख करके। तो ये हो गया ना बाबू जी हाँ, इनको ये तो हो वही गया। चोट लगी है। तुम बना दो, मैं थोड़ा इन लोगों की घुमा दो। फोटो खींच लिया हाँ आप लोग खड़े हो हाँ? एक मिनट जल्द आप इधर आइए, आप लोग इधर आ जाइए, सब कोई अगल बगल खड़े हो जाइए। आइए आइए, वो भी आ गया। अबे सर आइए हो रहा है बाबा जी। इधर से आए आप आप अच्छे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आप इधर आ आप लंबे दिखाई देंगे, हम दिखाई देंगे। अगर तुम्हारे हाथ आ रहा है मैंने ऐसे आ जाइए। जब तक करीब रहेंगे हाथ आ रहा है। नहीं अच्छा रहेगा। और थोड़ा करीब रहेगा। रूम नहीं होता थोड़ा सा, रूम नहीं होता होता है। ये नहीं पता लगता है कि फोटो देखते हैं, बाकी वीडियो है देखिए। बोलो मत। हो गया। दो चार 10 ले लो तो अच्छा है। हो गया। अब बस हो गया। अब तुम इसको ले साइड यहाँ से लेना। जल्दी करो वरना बैटरी उसकी खत्म हो जाएगी। अब कैमरे को हिलाओ मत। हो गया बस ठीक। अब वो ले चलिए लो। गुरुदेव हाँ। प्रस्थान भी करो। ये पकड़ो कैमरा, माला उतारो, अच्छा है, अच्छा है। इसको पकड़ के बंद कर दो। ये बंद कर दो, इसको दबा, इसको बटन बस। पहले प्रोसेस है 22 साल से मैं छोड़ रखा जी लाइफ साइंसेस पे रिसर्च चल रहा What are you doing at present? है। कंप्लीटेड द रिसर्च वर्क Research. जीरो आजकल फक्कड़ है। फक्कड़ की दुनिया में कुछ नहीं होता। इधर एक बार Related दिखाओ। for any. जीरो जीरो जी क्रॉस जीरो yes sure. आज जीरो के बारे में बात करेंगे। Foremost, foremost personality has been born here. He has self-working on zero. ड्राइवर साहब माचिस ले हो क्या? His name is Swami Vivekananda. Yes. मियाँ जी यहाँ से, मियाँ जी यहाँ से गए थे। मियाँ जी गए? Yes. अभी यहाँ as से you- निकले। Yes. हाँ हाँ, तो जाने दो, बस क्या करेंगे, अब लौट के आएंगे बात करेंगे। Yes. Yes. आ जाओ आ जाओ। Yes. but zero it is not a meaning. Yes. What have you attended? Did you? 2 अप्रैल, हाँ Yes. Sir. 2000 2 अप्रैल 2012 ये
गोमतीदास महाराज की जय। जय श्री सेवादास एक महाराज की जय। सीधा श्री रामदास महाराज की जय। श्री शीतलदास महाराज की जय। श्री अंगदास महाराज की जय। श्री ईश्वरदास महाराज की जय। सर्व गुरु की जय। सर्व देवी की जय। सर्व देवता की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। राधा कृष्ण की जय। संन्यासनार्थी जय जय सीताराम। हर हर श्री राम। आज एक आज 3 आज 2 इधर देखो नहीं ऐसे देखा नहीं। आज 2 अप्रैल 2012 लड़के में गाड़ी बात करो। यहाँ हम लोग यहाँ मन्हेरू धाम में हम लोग अभी आपने संध्या आरती देखी। खड़े रहिए खड़े। संध्या आरती देखी है। मन्हेरू धाम में हम लोग हैं। डॉक्टर राव भी हमारे साथ में हैं और काफ़ी लोग हैं। दरोगा जी भी हैं, हरीशचंद्र वर्मा जी वो भी हैं। और यहाँ आपने आरती देखी। सिद्ध स्थान है और इसके जो जिन्होंने स्थापना की थी वो स्वयं में एक सिद्ध थे। और सिद्धि क्या है? उनके पास ईमानदारी थी, कोई आडंबर नहीं। तो उनके ज़माने में उन्होंने सिद्धि किया। उतनी ही सुंदर उनकी मृत्यु हुई थी। वहाँ पर यहाँ पर अब कार्यक्रम आज होगा। हम लोग रुकेंगे यहाँ और हम लोग 9-10 बजे लाइब्रेरी के लिए रवाना होंगे। और कल हम लोग वहाँ भवनेश्वर सुखू बाबू के साथ जाएंगे। कल हमारी वार्तालाप सुखू बाबू से होगी। जिसको आपने पागल कहा था, उस पागल ने इतना बड़ा काम किया है। शायद रायबरेली नहीं, हिंदुस्तान में आज तक उतनी बड़ी विजय श्री किसी को नहीं मिले। वो विजय श्री मिला है डॉक्टर राव, डॉक्टर पीएल राव को। सुखू बाबू से यही कहेंगे कि आप अपने शुद्ध समाज से कुछ व्यवस्था करके चलो आरती की तैयारी करिए। उस महान व्यक्ति को आप काम दीजिए ताकि रायबरेली का नाम हो पूरे हिंदुस्तान में। थोड़े दिन के बाद यहाँ से दुनिया छोड़ के चले जाएंगे सब। तो कार्य करने से सब कुछ होता है। मन्हेरू का इतिहास ये है कि यहाँ के रामपाल जी के जो नाना जी थे वो यानी ईमानदारी उनका एक रिकॉर्ड था, एक पहचान थी उनकी। और रामपाल जी का सौभाग्य देखिए कि अपने नाना जी को देखा उन्होंने, नाना जी के सानिध्य में रहे। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्हीं का इतने वो सिद्ध पुरुष थे, उन्हीं के द्वारा ये यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। और ये हनुमान जी में भी बड़ी सिद्धि है। तो हम लोग यहाँ आते रहते हैं और रामपाल जी बड़ा स्नेह रखते हैं, जबकि हर तरह से वो संपन्न हैं, सबल हैं, लेकिन उतने ही वे विनम्र हैं। और विनम्रता ही जो है उनके खानदान का उनका परिचय करवाती है। वो लोहा सिंह और लाठी सिंह बन जाते तो शायद ये ना होता। हम लोग यहाँ कहाँ आते, बड़ा लोगों का मान जान करते हैं, संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। वो साधु संतों को बड़ा विशेष महत्व देते हैं। यही उनकी महानता है, यही उनका बड़प्पन है। जबकि आज के ज़माने के साधु लोग जो हैं, कहने को साधु होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से जलेसी पहचानते नहीं, तो हम समझते हैं मूर्ख हैं वो। क्योंकि भाई ये जितना ही आप सेवा की ओर बढ़ेंगे, निस्वार्थ सेवा, वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उतना ही आप हाई फाई होंगे, उतना ही आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन ये अंधा समाज, डॉक्टर पीएल राव जिसके लिए
रुपया पैसा उसके लिए एक तमाशा था। करोड़ों में खेलने वाला आदमी आज अपनी ईमानदारी से, अपनी उदारता से आज वो शौक पर आ गया। उसको लोग पागल कहते हैं। तो पागल कहने वाले वो सीखें। और डॉक्टर राव जैसा महान दार्शनिक उसको भी श्याम साधु फंसा देता है। श्याम साधु उसके सामने कुछ नहीं है शिक्षा के मामले में, लेकिन डॉक्टर राव का यही कथन है कि मैं तो आपको गुरु मानता हूँ। नहीं, उनकी महानता है। विवेकानंद ने भगवान रामकृष्ण परमहंस को गुरु माना। तो कहने का मतलब है कि सोच कर बोलने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। और हमको सुखो बाबू हमको खुद बताना है कि सर आप अब इतना सब कुछ करने के बाद आप ये सोचें, ये दुनिया को मत देखिए फलाने डॉक्टर ये वो, अरे भाई औकात है कोई हम कहते हैं आप ही में हैं, आप बड़ा दान पुण्य बहुत धर्म कर्म किए हैं, ठीक, तो आप यही ज़रा श्री को ज़रा निरुत्तर कर दीजिए, चारों खाने चित्त पटक दीजिए। अब युग है, कलयुग है सर, हमको आप करके दिखाओ। जैसे हम कोई बात बोलते हैं तो हम उसको सिद्ध करते हैं। आज डॉक्टर राव को हमने बहुत हंसाया और ये कहा कि जो दुनिया का बड़े से बड़े संत हुए हैं, आपके यूरोप में जो हुआ है, कौन पॉप रहे कौन रहे, और ऐसे ऐसे जल छिड़क रहे हैं और सब ताज वगैरह पहना है, दुनिया का बादशाह। अगर उससे भी पूछा जाए कि महाराज एक मिनट बैठिए, जो मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी कहा जाए महाराज यहाँ बैठिए, आज सवाल जवाब होगा, और जो हम सवाल करेंगे वो सिद्ध करेंगे। और आप भी मुझसे सवाल कीजिए, आपको भी सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। हम अंधविश्वास पर नहीं जाएंगे। तो आज उनसे हम ये पूछें, सपोज करें आप 1 मिनट के लिए मैं आपको बकरा बनाए देता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं आपको सुअर बनाए देता हूँ, थोड़ा एक नाटक खेल लो, ठीक, अब आप बकरा बन गए, आपको सुअर भी बना के बैठा दिया। और उसके बाद हम आपसे पूछते हैं कि देखो भैया हमारे कुरान में ये लिखा है, हमारे बाइबल में ये लिखा है, और हम अब चाकू निकाल रहे हैं, बढ़िया धारदार चाकू, और तुमको हम उड़ा करके खूब पका के खूब मिर्च मसाला लगा के खाएंगे, बोलो आपको मंजूर है? तो जो दुनिया का बादशाह है वो चिल्लाने लगेगा, वो गिड़गिड़ाने लगेगा, हाथ जोड़ेगा, पैर गिरेगा, अरे भैया अरे ऐसा मत करो, अरे हमको छोड़ दो। तो जब अपनी बारी आएगी तो दुनिया का जो बादशाह कहा जाता था, चाहे पाप हो चाहे हमारे शंकराचार्य हो, जितने चार आचार हों, जब अपनी जान पर आती है तो फिर भागने लगता है। जब दूसरे की जान ली जाती है तब वो गीता बाइबल और रामायण की बात करते हैं। अपने पर आई तब तो आप भूल गए सब। तो ये क्या बेईमानी नहीं है? ये यही मेरा दुनिया वालों से कहना है। डॉक्टर साहब को हमने जो आज एग्जाम्पल दिया, उनको हंसी आई और उन्होंने एक्सेप्ट किया, माना हमारी बातों को, भाई आप ठीक कहते हैं, आपकी बातों में दम है। तो हमारी बातों के एक महान दार्शनिक, इतना बड़ा विद्वान डॉक्टर पी.एल. राव, आप लोगों कंडीशन पर क्यों जाते हैं? श्याम साधु के बाल बड़े नहीं हैं, श्याम साधु की दाढ़ी बड़ी नहीं है, हैं? श्याम साधु माला नहीं पहनता, टीका नहीं लगाता, इसके माने श्याम साधु नथिंग, श्याम साधु माने कुछ नहीं। इसके मतलब आप एक नंबर के बेवकूफ़ हैं, आप एक नंबर के अंधे हैं, आपके पास अकल नहीं है। कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करो। यह डॉक्टर महान दार्शनिक डॉक्टर पी.एल. राव का भी यही कहना है, कार्यों और विचारों का मूल्यांकन करो। कपड़े का मूल्यांकन करता है बेवकूफ़ है। और राजा जनक के दरबार में जो हाँ अष्टावक्र का मजाक उड़ाया गया था, है वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े रहे, तो हम भी तो बड़े काले कलूटे खुदरूप हैं, आप हमारा मजाक उड़ाएंगे। तब अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा था कि राजन, इन चमारों को आपने कहाँ बैठा रखा है? इतना बड़ा जूता कोई नहीं बना होगा जो चाणक्य ने, जो अष्टावक्र ने मारा था। तो कुछ आंखों में हया शर्म रखिए, बात वो बोलिए जिसमें दम हो। जब डॉक्टर राव ने हमसे बताया, किसी तरह गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ मीडिया नहीं उनको समझ पाई,
अब वो कहीं ना कहीं अखबार में बात आएगी। अब जनता में खुसर फुसर हो, अब शुरू हो चुका है रायबरेली में कि रवि श्री को निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर मतलब पटक दिया, हरा दिया उसको। आप किसी भाषा में बोलो, ये क्या है? मर्दानगी वाली बात पर आइए, पैसे आडंबर के पीछे मत भागिए, उससे आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसीलिए मैं पैसा नहीं लेता हूँ। नो, पैसा लिया गए हम काम से, हम आपका कुछ खाएंगे पिएंगे बहुत संभाल करके, वो भी ज़्यादा नहीं। हमारी शक्ति है। दरोगा जी ने 2000 रुपया हमको भेजा सीतापुर से, यहाँ मनेरू आया, वही यहाँ से 2000 का गेहूँ भून करके ठाकुर रामपाल सिंह जो यहाँ का एक भाई अब नंबरदार हैं, बहुत प्रभावशाली आदमी, और वो गेहूँ भुनवा के लेके जा रहे हैं। दरोगा जी हमारे यहाँ दरवाजे गधे को ड्रेसिंग करवा रहे हैं। डॉक्टर पीएल राव जो है वो हमारी मदद कर रहे हैं गधे की सेवा में, और उन्होंने एक संकल्प ले लिया है कि हम दुनिया के सामने श्याम साधु को लावेंगे। श्याम साधु को वाहवाही नहीं करवानी है, श्याम साधु को संदेशा देना है मानवता का। वाहवाही करवानी होती, पैसा लेना होता ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना पर्यावरण पर और अनाथ पशुओं पर मैंने काम किया है इंडिया के अंदर, 73 साल के हो गए, 2 महीने में 73 मेरा पूरा हो जाएगा। मैं 74 में लगूंगा। पूरी लाइफ का हमारे पास रिकॉर्ड है। आज तक एक फूटी कौड़ी लिया कभी किसी से? सरकार से मांगा, किसी मनुष्य से मांगा, किसी दरबार से मांगा? क्यों नहीं मांगा? अरे हम जिसका काम कर रहे हैं वो हमारा काम कर रहा है। कपूर मशीनरी वाले कपूर साहब ने हमारी बात से बहुत प्रभावित हुए, मिलवाएंगे काके कपूर। उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक बार कहे थे हम उसका काम करें, वो हमारा काम करेगा, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों भीख मांगे उससे? भाई हम उसका काम करेंगे, उसको मजदूरी देनी पड़ेगी कि नहीं? आप जिसके यहाँ काम करेंगे वो कितना भी बेईमानी करेगा तो खाना भर को तो पैसा आपको दे देगा ही। वो जानेगा जब खाना हमारा मजदूर नहीं खाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? और भगवान के यहाँ बेईमानी तो है नहीं कि भगवान के यहाँ बेईमानी है। तो हमारा मतलब यही है कि इसी तरीके से मनुष्य को जो दुनिया से अलग हट के बोलता है, बड़ी आसानी से उसको लोग पागल कर देते हैं। लिहाजा आप सुखू बाबू से हमारा यही कहना है कि अब उनको सराखों पर बैठाइए। जो रायबरेली में, अरे वो हमारे रायबरेली के हैं, रायबरेली में इतने दिन रहे, वो हमारे रायबरेली के हो गए। श्याम साधु से उनको क्या लेना है? लेकिन नहीं, श्याम साधु के लिए आवाज़ उठाने के लिए उस डॉक्टर साहब ने बीड़ा उठा दिया। जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा, और ये उनके लिए पुण्य है और धर्म का काम है, वरना भगवान भी पूछेंगे क्यों साहब आप इतने महान दार्शनिक बने थे, इतने क्वालिफाइड, इतने पढ़े लिखे आप थे, आपने आंखों से देखा था एक अद्भुत मानव को, उसके बारे में आपने क्या किया, क्या बोले, क्या कहा? नहीं कहा तो जाइए आपकी विद्या सब छीन ली जाती है। अब जाइए मनुष्य बन करके और बीड़ी कारखाने में जाके बीड़ी बनाओ, जाके जाओ, यही होगा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा है, तुलसीदास ने कहा है, रामायण में लिखी है बात। तो हम वाणी को विराम देंगे, आगे क्या प्रोग्राम होगा वहाँ थोड़ा बहुत हम लोग बोलेंगे, जानेंगे, और उसके बाद फिर रायबरेली के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। और डॉक्टर राव को लोग समझने के लिए, अरे हम अंधों से कहते हैं डॉक्टर राव के पैरों में गिरो, डॉक्टर राव को समझो, जय जय डॉक्टर राव को समझो। तो इन्हें कि ये क्या, आप दुनिया भर के बारीकी में क्यों जाते हैं? जो दूध का धोया होगा वो देवता हो जाएगा। हम भी दूध के धोए नहीं हैं कि हम दूध के धोए हैं। हम बेईमानी नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं गलत हैं भगवान के निगाह में। अब उसको हम अपने बारे में क्या बोलें? कहीं ना कहीं हर इंसान गलत है। दूध का धोया होगा, 1 मिनट में शून्य से ऊपर निकल जाए, 1 मिनट धरती में नहीं रुक पाएगा। हाँ, ये परसेंटेज देखा जाता है। हम अगर कहीं गलत हैं तो वो समाज को देखते हुए कहीं बड़ी गलती नहीं है। तो वाणी को विराम देते हुए आज की ये दरवाजे के पहले आपने गधे की ड्रेसिंग करवाते हुए देखा है, और जिसमें रिंकू भदौरिया वगैरह सब आए हैं साथ में। और ये दूसरी फाइल आप देख रहे हैं। तीसरी फाइल रात में बनेगी, थोड़ी बहुत अंधेरा है, लेकिन जो भी आवाज़ आ जाए। तो हम वाणी को विराम देते हैं। पीछे हनुमान जी के दरबार में हम बोल रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये
ठीक, अब कोई आगे पड़ जाए तो आप थोड़ा ठीक से हो जाइए। जी, जी, बिल्कुल। अब ये चालू हो गया। ठीक, हाँ जी, अंदर चला जाए। हाँ। ये आप भेंट कर दी। ठीक है। अब आइए। अभी आपने देखा जी। दरोगा जी का सम्मान, आपको नहीं बोलना, ये दरोगा जी का सम्मान हुआ हनुमान मंदिर में। जी। हाँ, आप उधर आओ। यही जीवन है। यहाँ है आप इसमें रहो ना। नहीं नहीं अपने दीजिए दीजिए तो आप। तो भाई ये इनका सम्मान हुआ। फिर कभी इनको मनेरू आना पड़ेगा दिन में, ताकि यहाँ की जनता की जो समस्या है, जो कोई भी बाधा है, शरीर का कष्ट है, ये तो हाँ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आपके हाथों में, तो उस कष्ट का निवारण भी होगा। और मनेरू दिन में एक हनुमान धाम है, और ये संयोग है कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आ जाते हैं, ये हनुमान जी की कृपा है। वैसे गांव बहुत से हैं, हनुमान मंदिर बहुत से हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ होता है वो अपने आप में एक अजूबा होता है। ये तो अब हम लोग मंच की ओर चलेंगे। चलिए हमारा हाँ, इसको चलने दीजिए। दूसरा हाथ ना लगेगा। जी जी दूसरा हाथ नहीं लगेगा। आगे पहुँच। बस ठीक, देखिए जी। आज इसी ये बटन दाबने से हेलो हेलो चालू है। हमारे दबा उपस्थित दबा दिन। परम आदरणीय श्री श्याम साधु जी महाराज का स्वागत उनके भक्त जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आए और उनको माला पहनाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। और समस्त भक्तजनों से अनुरोध है कि कृपया ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बैठे हुए सभी भक्तजन
हमारे श्याम साधु जी महाराज का स्वागत है, अभिनंदन करें। और इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित नेत्र चिकित्सक श्री डॉक्टर पी.एल. राव जी, श्याम साधु जी को माला पहनाकर उनका स्वागत है, हम अभिनंदन करें। हो गया? व्यास मंच पर विराजमान हमारे बीच उपस्थित बाल व्यास कुमारी सरस्वती स्वाति शर्मा जी का स्वागत है, हम अभिनंदन करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हरिशंकर मिश्रा की धर्म पत्नी, हरिशंकर मिश्रा जी की धर्म पत्नी आए और चल रहा है बाल व्यास कुमारी स्वाति शर्मा जी का स्वागत है, अभिनंदन करें। पकड़े रहिए। थोड़ा सर इधर थोड़ा बस ठीक, क्लोजअप करो सब करो। महाराज जी आप आ जाओ। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक था वो लोग कर रहा था अब आपको हमें नहीं पता ना सिस्टम वो कर उस समय बढ़िया किया था। जो ये लगा रहे थे दवा उसका क्लोजअप एकदम निकाल दिया पूरा, जो है देखने में वो खराब लग रहा था, पूरे कीटाणु टाइप में आ गए थे और बच्चे छोटे बच्चे ने जो है पूरा सब कुछ निकाल दिया। अरे वो सब और उसी पछड़ जाओ, वही लगे ठाड़ हो जाओ। हाँ बस ऐसा ठाड़ रहो। ये बिटिया ये का उठा ले जा। हाँ आज 3 तारीख है ना कि 2 है? आज 3 है। ठीक है, लो हाथ से मियाँ 1 मिनट छोड़ 3 कपड़ा हाँ है। गंदी बात तो ये तुम लोग वैसे आ जाओ यहाँ ठाड़। हाँ नहीं बकरिया आ जाइए बाबा। अच्छा बस ठीक है, 1 मिनट। हाँ, हाँ आप हाथी इधर आ जाइए। हाँ चलो आज 3 अप्रैल 2012 है। इस समय हम भंवरेश्वर मेला परिसर में सुखू बाबू के साथ आ चुके हैं। ये उनकी गाड़ी खड़ी है, इधर जरा दिखा दीजिए। ये उनकी गाड़ी खड़ी है। मैं यहाँ आया हूँ आज, चूँकि मंगल का दिन है, हमको रविवार को आना था। हर संडे में सुखू बाबू यहाँ महीने के पहले संडे में आते हैं, लेकिन हम उस दिन वहाँ गए थे फुर्सतगंज रामनवमी में, और दूसरे दिन मनेरू गए थे। खड़ी रहो, हम हट गए हैं। हाँ बताइए हट गए हैं। तो ये समझिए कि अभी हम आज, एक तो मंगल का दिन है और दिन के 3 का समय है, तो कहीं बंदर इक्का दुक्का यहाँ दिख रहे हैं, तो मंगल में ऐसे भी नहीं आना चाहिए। ये जो बकरी पालक था, अभी यहाँ एक आदमी जो खड़ा था अभी दौड़ के गया है, ये आदमी का ये कहना है कि जो कोई बारात या कोई लोग भंडारा करते हैं तो ये बड़ा वाला मटर जो होता है छोले वाला, उसका तमाम छोले बनाए, नहीं किसी ने खाया तो वो ऐसे ज़मीन में पलट के चले गए। हाँ तो सीधा रखिएगा ऐसे, तो वैसा है, अंदर से गंदा है, तो इसको सीधा रखिए। हाँ चलो सीधा है ऐसे हाँ। तो अभी बकरी पालक ने बताया कि जो छोले लोग डाल के गए हैं, तमाम जगह जगह छोले पड़े हैं बड़े मटर के, उसको अगर हमारी बकरियां खा लें तो उसमें चूँकि मिर्च मसाला और डालडा है तो हमारी बकरी बीमार हो जाती है। यानी प्राकृतिक जीवन जीने वाली बकरी, ये मसाला जो आज का मानव इंसान खाता है, बड़े शौक़ से खाता है, बहुत खुश हो जाता है, तो ये बकरी के लिए वो आदमी भाग के गया है कि वो छोले का जो ढेर पड़ा है, न बंदर खा रहा है न उसको बकरी खा रही है। इसी तरह सिरफिरे अंधे लोग या बहुत बड़े लोग जिनके पास कोई अकल नाम की चीज़ नहीं, ज्ञान नहीं है उनके पास,
और आए बताइए कितनी चीज़ों की बर्बादी, जगह जगह मटर का भी हम उसका बनाएंगे, पहले गेहूं बंदरों को दे दें यहाँ। तो वो छोला जो है इतनी महंगी चीज़, उतनी महंगी बनवाई, गरीबों को नहीं मिलता है। अरे गरीबों में बांट दो, बच्चों में बांट दो, लेकिन नहीं, आए अब वो छोला और क्या क्या आके डाल के चले गए। अब वो ना वो ज़मीन में पड़ा हुआ, अब वो आदमी के लायक, बच्चों के लायक तो रहा नहीं। अब वो जानवर खाए तो बीमार, बकरी खाए तो बीमार, तो बेचारा बकरी पालने वाला आदमी, अभी मैंने जैसे कैमरा निकाला कि उसकी हम आवाज़ को भर लें, तब तक उसने देखा कि बकरियां वहाँ वो छोले तक पहुँच चुकी हैं। अभी रास्ते में हम छोले के बनाएंगे। इस कैमरे सीडी देखने के बाद ये अंधा समाज जागता क्यों नहीं? जैसे अभी अभी बंदर की बात आई तो हमारे दुकानदार जी के देखिए इतनी उम्र है, लेकिन इनके दिमाग में वही मंगल भरा हुआ है। क्यों? इन्हों से उन्हें कहें हाँ महाराज आजे के दिन नीक होत है। सोचिए आप, अब इनको जो बताया गया है हमारे साधु संतों, हमारे पंडितों ने, जिन्होंने कभी बंदर नहीं खिलाया, जिन्होंने कभी गाय गधे सूअर की सेवा नहीं किया, और वो महात्मा बन के भाषण देते हैं, हमारा अंधा समाज उनको चढ़ावा चढ़ाता है। समाज अंधा है। कबीर साहब ने बहुत ऊंची बात कही थी कि यह जग अंधा और के समझाऊं, बहुत ऊंची बात कही। तो आए ये लोग कबीर के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? कबीर के पीछे भागेंगे उनका घाटा हो जाएगा। जल्दी बोलो, आगे जल्दी बोलो। हाँ आइए भैया 1 मिनट के लिए। तो ये जो छोला पड़ा हुआ है इसको आप अपने बकरी को काहे नहीं खाने दे रहे हैं? मर गए हैं साहब। मर गई है साहब। देखा छोला अगर बकरी बंदर नहीं खा रहा तो बकरी कहाँ खाए थे? हाँ बंदर नहीं खा रहा है। हाँ? अभी उस छोले का हम बनाए तेल की चीज है। हाँ डालडा खाए। हाँ डालडा तो मीठा तो अलग है। हाँ। मर जाए बकरी सारी हमारी अरे नाश हो जाए। अरे राम ये तो है कहाँ देखिए। खाए थे अब? हाँ। तो बंदर न मरी है कहीं है। सही बात। बंदर मरी है। देखा कि यहाँ ये मूर्ख लोग आए भौरेश्वर दर्शन, खूब घंटा बजाया, कलावा बांधा और जो है कैमरा टेढ़ा सीधा नहीं नहीं वो जब बनेगा ना कुरा दियो और यहाँ कुरवा हरा गोरू हरा खा तुम्हारे जैसे हरो न खा रहे हैं। हाँ हैं? हाँ कितनी कितनी बर्बादी बर्बादी खाएंगे। कितना मेरा अंधा समाज है, हैं? तब नहीं खाई है नहीं, नहीं। जितना खाई है पूरी छोड़ी नहीं पूरी नहीं खा ले। पूरी हलवा बंदर को लाने की क्या जरूरत? जल्दी 6 बजे इनका पहुंचेगा है। अच्छा अभी सुखू बाबू ने 2-4 किलो लड्डू ले लिया। हमने कहा सर ये बंदर डालडा वगैरह बहुत कहीं ना वो सब खा लेते हैं। अब खा लेते हैं, छोला पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बंदर ने खाने खाया आधा खाया उबला साग है, छोला है तो, हाँ। वो का चना का बड़का सब नहीं खाई। अब वही तो वही पड़ा। हमने देखा कि जगह इतने ढेर पड़े हैं। वो यही बारादरी हाँ। वो पड़ा है, हेलुआ पड़ा है। अरे बाप रे, हेलुआ ये एक झुआ पड़ा। एक झुग्गा हलवा पड़ा है, देख यही रहे बारादरी में हैं? देखो। अरे बाप रे बाप। हैं? अच्छा नहीं मनन का बाकी नहीं ना बाटे हैं? बंदर खाएंगे। अच्छा क्या कर हाँ एक झुआ पड़ा है। देखिए हलवा एक झुग्गा, ये आदमी बोल रहे हैं एक टोकरी हलवा पड़ा है, छोले पड़े हैं बड़े बड़े उसके कम रहा होगा 20-25 किलो। तो अब हम पानी को विराम देंगे। अब जो गेहूं लाए हैं अभी भुना गेहूं बंदर खाता है, पानी पिएगा और उसके बाद में हम जल्दी से रवाना होंगे। हम वाणी को विराम देते हैं। आज की 3 तारीख में 3 अप्रैल का ये पहला फाइल है और आगे बंदर भोज का आज हम नहीं बना पाएंगे। जल्दी भी जाना है रायबली वापस। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये दूसरी फाइल हम यहाँ बना रहे हैं। ये चने के छोले बड़े वाले चने के छोले देख रहे हैं। मिर्च मसाला पड़ा हुआ एक ढेर ये देखिए, ज़रा बर्बादी देखिए, मेरे अंधे समाज को देखिए। इसके ऊपर हमारे साधु संत या बड़े बड़े धनी मनी लोग इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? ये बंदर खाए, देखिए पड़ा है, हज़ारों बंदर के बीच में पड़ा है। एक एक दाना हाथ से मलता है तब शायद एक दाना खाए। इसको जानवर वाले नहीं खाने दे रहे हैं। क्यों? ये जानवर खाएंगे सब डालडा है, वो बीमार हो जाएंगे। बकरी वाले नहीं उसको खिला रहे हैं। अभी बकरी वालों ने